क्या करना है आज मुझे? संभव जैन जॉइंट, ओके। चलो देखते हैं आज हम क्या करते हैं, ठीक है। All right. Today we are going to discuss about the body compositions, right? How to measure body compositions. ठीक है, फिर इसके बाद में एक जल्दी से इसका रिवीजन करूंगा मैं इस चैप्टर का, और फिर उसके बाद में मंडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। You can see my screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. This is Slaughter and Lohmann children skin fold formula to measure the fat. Slaughter and Lohmann designed a formula for finding out the body fat among the children of 8 to 10 years. And to calculate this body fat percentage, skin fold measurement at triceps, at calf, and triceps and calves are recorded. दो जगह से triceps muscles का नाम है, calf is also a muscles, and the following are the procedure to measure the skin fold. एक कैलिपर होता है, आपने फिजिक्स की लैब में कैलिपर देखा होगा. Have you seen that कैलिपर? वो ऐसा मुंह होता है उसका, ऐसा वो कम ज्यादा हो जाता है, उसका मेजरमेंट लेते हैं. Have you seen? एक कम ज्यादा हो जाता है. सागर सर के यहाँ पे देखा होगा आपने जूनियर साइंस लैब में कैलिपर. किसी वायर की थिकनेस मेजर करनी हो, कुछ करनी हो, लाइकवाइज. सो मेजरमेंट ऑफ स्किन फोल्ड एट ट्राइसेप्स. Skin fold measurement for triceps is taken vertically on the back of the arm. Likewise here vertical, इसको ऐसे पकड़ते हैं और फिर vertical measure लेते हैं कैलिपर से. तो skin fold measurement of triceps is taken vertically on the back of arm and in the center of top of the shoulders point. ठीक है, शोल्डर पॉइंट पे लेते हैं. एक्रोमिनियल पोजेस एंड एल्बो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, ये दो जगह से हम लोग, एक यहां से ऊपर से और एक यहां से ट्राइसेप्स के पास. द आर्म शुड बी रिलैक्स विद द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड. ए वर्टिकल पिंच, वो नोचना कहते हैं ना, पिंच, वैसे उसको स्किन को खींच लेते हैं, नोचते नहीं है, ऐसे खींच लेते हैं. ये ऐसे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्म, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, लंबे एक्सिस. इट मेड एट द लैंडमार्क बिफोर स्किन फोल्ड कैलिपर इज यूज्ड. ठीक है, एक लैंडमार्क बना लेते हैं, एक निशान लगा लेते हैं और फिर उस जगह से वहां पे स्किन की थिकनेस को मेजर कर लेते हैं. नाउ द सेकंड इज काफ. A medial calf skin fold site is one of the most common location used for assessment of the fat. Using skin fold caliper, the subject means the student जिसका टेस्ट ले रहे हैं, the subject is advised to place his or her foot on a chair or box so that knee is at approximately 90 degree. किसी चीज पे पैर रखा लेते हैं जिससे नी का एंगल 90 डिग्री हो जाए. A vertical pinch parallel to the long axis of the leg is given, right, at the largest circumference. जो काफ का है, काफ मीन्स जिनको हम पिंडलियां बोलते हैं अपनी, है ना,
घुटने से और एड़ी के बीच में जो हिस्सा होता है, large circumference of calf, and on the medical surface of the calf skin fold measurement is taken. सेंटर से ले लेते हैं, ठीक है, एक निशान लगा के उसको सेंटर में रख के फिर उसका फोल्ड ले लेते हैं. The skin fold equations shown below are used to predict body fat in the children between 8 to 10 years or 8 to 18 years of age. By putting value of the skin fold caliper of triceps and the calf, the following equation calculates the body fat percentage. Number one, how that body fat calculated? The formula given here, value is fixed for the boys body fat, it is 0.735 ब्रैकेट में ट्राइसेप्स प्लस बाइस काफ दोनों का रीडिंग प्लस 1.0. जब इस इक्वेशन पे हम उस कैलिपर की वैल्यू को डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं पूरी इक्वेशन को, देन वी फाइंड द बॉडी फैट ऑफ द बॉयज. नाउ फॉर द गर्ल्स इट इज डिफरेंट. If you want to measure the body fat for the girls, then the value is 0.610. Again, bracket में triceps और calf का value add करके plus 5.1 has to be added. If we will calculate this caliper values, triceps and calf, we place it in this formula, we can get girls' body fat. This is also one of the way through which we can find out how much body fat a boy or a girl is obtaining, right? So this is all about this chapter. इसके आगे question answers है. Explain the method of measurement of BMI, how hip weight ratio test is administered, what do you mean by the somatotypes, what is the characteristics of ectomorphs, what are the traits of the endomorphs, describe the traits of mesomorphs, explain strength test for health related fitness, explain the importance of test and measurement in physical education, define BMI, explain. ये 5 नंबर वाली, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कुछ ये भी है, क्या बॉडी मास इंडेक्स बहुत डेवलप हुआ है, किसने किया, नाम पता लगा सकते हैं. ये सारे आपके एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है. लेकिन अभी हम चल रहे हैं पूरे, एक बार चैप्टर को देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, ठीक है. राइट. So in the chapter number 7, test and measurement and evaluation, we have tried to understand the definition of the test, measurement and evaluation, right? तो इसमें हमने सारा किया था measurement applied to the products or to process, ये दोनों सारी चीजें हमने कवर की थी. फिर हम लोगों ने यहाँ पे measurement in physical education, social measurement, fitness testing measurement, technique measurement, ये सारी इन चीजों के बारे में बात किया था. Importance of test, measurement and evaluation in sports, ये हमने डिस्कस किया था. इसके इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, रैंकिंग ऑफ द ग्रुप, मोटिवेशन, प्रेडिक्शन ऑफ प्लेइंग एबिलिटी, इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्या, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. देन प्रेडिक्शन ऑफ प्लेइंग एबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स, दिस वी हैव डिस्कस्ड, राइट. क्या हुआ then after that calculation of BMI and waist hip ratio, वेस्ट और हिप के रेशो से हमने बॉडी मास इंडेक्स निकालने की बात की थी. यहाँ पे हमने ये सारे टेस्ट के बारे में बात किया था, सबने घर में किया था, ये सबको मजा आया होगा. इस टेबल पे जब हम इन सारे वैल्यूज को डालेंगे वेस्ट हिप रेशो पे,
तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में कितना फैट कंटेन्स है। ठीक है, फिर इसके बाद में सोमैटोटाइप्स, मैंने आपको बताया था एवरी इंडिविजुअल इज बेसिकली फिक्स्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सोमैटोटाइप्स में बात किया था कि मैं जैसा हूं वैसा यूनिक हूं, और आई शुड नॉट फील एनी टाइम suppressed about my own self. The reason is God has created me, and He has created me uniquely, and definitely He is having some task which is unique as a soul, right? तो इसके हमने 3 टाइप्स अंडरस्टूड किए थे, इंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी, राइट? इसके बारे में सारी हम लोगों ने बात की थी, किस टाइप से होते हैं, किस शेप के होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या ट्रेट्स होती है, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड, राइट? नाउ देन वी हैव डिस्कस अबाउट द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। उसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में बात की, ठीक है? उसमें प्रोसीजर बताया था कि एक बेंच होती है जिसकी हाइट 50.8 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई उसकी 20 इंचेस की होती है। उस पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेपिंग करते हैं। पहले किसी एक पैर से शुरू करते हैं, फिर उस पैर को नीचे लाते हैं, फिर अदर लेग गोज अप, फिर उसके ऊपर खड़े होते हैं, फिर नीचे उतर के आते हैं। लाइकवाइज वी हैव टू डू अप टू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स और टिल वी एग्जॉस्ट। अगर 5 मिनट से पहले हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम उस टाइम को नोट कर लेते हैं। ये सारे मेथड फिर हमने बताया था, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार रीडिंग करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म, और एक बार से ज्यादा करते हैं, 3 बार करते हैं तो लॉन्ग फॉर्म। मैनुअल मेथड और मॉनिटर मेथड में बात की थी। मैनुअल मेथड में हमने क्या बात किया था कि हम जब रुक जाते हैं उसके 1 मिनट बाद, 1 से 1.5 मिनट के बीच में अपनी हार्ट रेट को मेजर करते हैं, फिर उस मेजरमेंट को फॉर्मूले में डालते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म निकालने के लिए और लॉन्ग फॉर्म निकालने के लिए, ठीक है? हार्ट रेट के लिए हम क्या करते हैं, पल्स रेट का सहारा लेते हैं मैनुअल में, और मॉनिटरिंग मेथड में क्या करते हैं, मशीन का सहारा लेते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी। आफ्टर दैट, सॉरी, ये था जो हमने मेजर किया था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, वो था कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का। रिमेंबर, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड टेस्ट। देन स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या किया था, कैरोस वेबर। सॉरी, ठीक है? स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कैरोस वेबर टेस्ट वी हैव डिस्कस इन दिस, वी हैव डिस्कस अबाउट 6 एलिमेंट्स, राइट? तो 6 में मैंने बताया था आपको पोजीशन होल्ड करने की, ये 6। उसके बाद में हमने फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने की बात की थी, सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है? सिट एंड रीच टेस्ट, और इस सिट एंड रीच टेस्ट में जो हम ऑलरेडी स्कूल में करते हैं उस बॉक्स के ऊपर काम करने की बताई थी आपको। फिर हमने बात की थी मस्कुलर एंडोरेंस मेजर करने की। सिट एंड रीच में फ्लेक्सिबिलिटी मेजर कर रहे थे और इससे मस्कुलर एंडोरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट थे, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सारी चीजें हमने मेजर की, और लास्ट में हमने मेजर किया बॉडी कंपोजिशन, ठीक है? ये रिवीजन मेरा इसका था। अब मुझे बताओ कि इस पूरे चैप्टर में किसी को किसी भी टॉपिक पे कोई चीज पूछना हो, कोई डाउट हो, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, दिस वी कैन डिस्कस इट हियर। यू कैन ओपन योर विंडोज, आप अपनी खिड़कियां खोल सकते हैं सो दैट वी कैन इंटरेक्ट। Any doubt in this chapter number 7 to anyone, and anything which you want to discuss it with me? अरे बाप रे, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? गो थ्रू विथ योर बुक, आई एम वेटिंग फॉर यू।
Go through with the notes. हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर एक बार व्हाट इज एक्टोमॉर्फिक क्या होता है? एक्टोमॉर्फिक, ओके ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटे, सी फर्स्ट somatotype is endomorphic. So endomorphic body type, it is solid and soft, मतलब थोड़े से इस टाइप के, इस टाइप के, दिस इज endomorphic, राइट। थोड़े से बल्की होते हैं और बॉडी थोड़ी सॉफ्ट रहती है उनकी। द बॉडी ऑफ एंडोमॉर्फ हैज टेंडेंसी टू स्टोर द फैट। वो जो भी खाते हैं वो फैट उनकी बॉडी पे थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, ठीक है, थोड़े फैटी दिखते हैं। दिस लीड टू ए वाइडर एंड हायर वेस्ट, ठीक है, थोड़ा वेस्ट उनका वाइडर होता है और थोड़ा लंबा सा होता है, ऊंचा सा होता है। द बिल्ड ऑफ एंडोमॉर्फ इज शॉर्टर इन हाइट विथ थिक लिम्स, ठीक है, थिक मीन्स थोड़े से मोटे, हाथ पैर जो लिम्स होते हैं थोड़े से बल्की होते हैं। एंड ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मोर एडिपोज टिश्यूज, due to accumulation of more adipose tissues, the lip looks shorter, क्योंकि थोड़े से बल्की होते हैं तो क्या फिर होता है, थोड़े छोटे दिखते हैं। The muscles of upper legs are very strong, जो जिसको हम थाई मसल्स बोलते हैं वो उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये इसकी टाइप है। अब मीजोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ ये टाइप थोड़ा सा हल्का सा लंबा। ए पर्सन हैविंग मीजोमॉर्फिक फिजिक हैज ए लार्ज बोन्स एंड मसल्स, थोड़ा सा लंबा, लार्ज। दे पोजेस एथलेटिक फिजिक, फिट नजर आते हो, एथलेटिक फिजिक नजर आते हैं। मीजोमॉर्फ इज द बेस्ट बॉडी टाइप फॉर बॉडी बिल्डिंग। जो बॉडी बिल्डिंग वर्क करते हैं ना, जो अच्छे से जिनके बलिष्ठ शरीर होते हैं, वो ज्यादातर मीजोमॉर्फ काइंड ऑफ बॉडी टाइप में फॉल करते हैं। They easily gain and they easily lose body weight. The mesomorph physique respond the best to the weight training. अब respond to the weight training का मतलब क्या है कि जब ये weight training करते हैं तो इनकी बॉडी बहुत जल्दी से शेप में आ जाती है, जल्दी से शेप एंड साइज में आ जाती है। If they are bulky, then they can come in the shape and size. Now the third one is called ectomorph. An ectomorph is a typical skinny person. जो दुबले पतले होते हैं ना लोग, वो लोग, जैसे यहां आप देख सकते हैं दुबले पतले लंबे। They have a light build with small joints. इनके जॉइंट्स छोटे होते हैं, ठीक है, और इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी हल्की नजर आएगी, लाइट बिल्डअप होगा। एंड लीन, दुबले पतले। Generally, they have long, thin limbs with string muscles. String muscles mean थोड़े लंबी muscles. The size of the shoulders is thin and has little width. साइजों का शोल्डर का साइज भी जो होगा ना, वो थोड़ा पतला होगा, थिन होगा, लेकिन इनकी विड्थ भी थोड़ी कम होगी शोल्डर्स की। दुबले पतले, लंबे और शोल्डर थोड़े छोटे। People posing ectomorph physique are usually slim, their chest is flat and they do not have much muscle mass. उनकी बॉडी पे
ज्यादा मसल्स मास नहीं होता है क्योंकि लीन एंड थिन होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ मसल्स मास दे लुक लॉन्गर, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल्स मास कम होता है इसलिए वो थोड़े लंबे दिखते हैं। दे पोजेस रिसीडिंग लोअर जॉ, थोड़ा सा जो जॉ है उनका रिसीडिंग रहता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं शार्प होती है चिल्ड्रन की। एज वेल एज लॉन्ग फिंगर्स, उनके हाथ की उंगलियां भी थोड़ी लंबी दिखेंगी। टोज एंड नेक दीज ऑल्सो लिटिल लॉन्गर। तो ये बॉडी टाइप्स है। अब इसमें कुछ पूछना हो पूर्वी तो फिर ऐड करें। नो सर, आ गया सर। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? सर यस शिवम। सर जो लोग मोटे से पतले ट्रांसफॉर्म होते हैं सर, वो किस टाइप में आते हैं? आवाज क्लियर नहीं हो रही बेटा। सर जो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे मोटे से पतले हुए या फिर वेट गेन किया उन्होंने, सर वो किस टाइप में आएंगे? Mesomorph kind of body types. They easily basically their body is basically made in such a way where they can overcome with this. They can gain the body weight easily and they can also lose the body weight easily. Right? The reason is their body type respond to exercise little more faster pace in comparison to the two other type, that is ectomorph और एक है ना इंडोमॉर्फ। उनके कंपैरिजन में मीजोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स रिस्पॉन्ड लिटिल मोर बिकॉज देयर बॉडी इज एथलेटिक बॉडी। उनकी जो फिजिक है उसको एथलेटिक बॉडी माना गया है, मीजोमॉर्फ को एथलेटिक बॉडी माना गया। जबकि तीनों टाइप की बॉडीज जो है, देखो अगर कोई मान लो इंडोमॉर्फिक है, अब इंडोमॉर्फिक अगर थोड़ा सा बल्कि है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जूडो कराटे में जाते हैं, रेसलिंग में जाते हैं, जो पावर गेम होते हैं, जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स होते हैं, उसमें ये बॉडी टाइप्स के लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कौन से वाले? इंडोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक क्या होते हैं? जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दूसरे बास्केटबॉल में तो एक्टोमॉर्फिक आ जाएगा, है ना। जहां पे लंबे खिलाड़ियों की जरूरत है वहां एक्टोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी कैन बी यूज्ड, और जहां पे इंडोरेंस लंबे जो गेम्स है दूसरे, उसमें मीजोमॉर्फ, और जहां पे बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स होने हैं वहां पे मीजोमॉर्फ। तो तीनों बॉडी टाइप्स इंपॉर्टेंट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। ऐसा नहीं है कि ये केवल मीजोमॉर्फिक पीपल आर सुटेबल फॉर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एवरी बॉडी टाइप इज हैविंग द सम और अदर फॉर्म ऑफ स्पेशलिटी, and according to that they can participate in the different games and sports. Are you getting my point? So these all three types. अब देखिए इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में स्पोर्ट्स साइंस अब थोड़ा डेवलप होना शुरू हो रहा है ना। जो हमारा स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, या जो हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिट इंडिया की बात कर रहे हैं, अब ये कॉन्शियसली हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे पास में वो चीजें नहीं थी। बट व्हेन यू सी कि अमेरिकन, जर्मन, चाइनीज, ये जो दूसरी कंट्रीज है जो ओलंपिक्स में हम लोगों से बहुत आगे खड़ी रहती है, वो क्यों खड़ी रहती है? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि वहां पे जो स्पोर्ट्स साइंस है, वो स्पोर्ट्स साइंस बहुत एडवांस लेवल पे जा चुका है। क्यूबा छोटा सा कंट्री है, राइट, लेकिन वहां पे स्पोर्ट्स साइंस बहुत एडवांस है। वो क्या करते हैं कि किसी भी बच्चे के टैलेंट को कहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 3 years, 4 years, 5 years, they identify the talent there, what type of the body type the child is having, what kind of the muscles fiber that child is having, either it is fast twitch muscle fibers or slow twitch muscle fibers, means red muscle fibers है इसकी बॉडी में या white muscle fibers है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही उस बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, एंड वंस दे आइडेंटिफाई द टैलेंट दे पिक दिस चिल्ड्रन इनटू द डिफरेंट सेंटर्स। पढ़ाई के साथ साथ उनको खेलने में स्पेशलाइज किया जाता है, और उसको करने से क्या होता है कि उनको
12, 14, 15 साल में वर्ल्ड चैंपियंस मिल जाते हैं। अब देखते हैं जिम्नास्ट आते हैं, जर्मनी के जिम्नास्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, अमेरिकन आते हैं, चाइनीज आते हैं, वो 12-12, 13-13 साल की लड़कियां होती हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी एज होती है उनकी, जो जिम्नास्टिक्स करती है ओलंपिक्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो इस छोटी एज में वर्ल्ड चैंपियन क्रिएट कर देते हैं। रीजन इज बिकॉज देयर स्पोर्ट्स साइंस इज ऑन द एडवांस साइड. Now the India is planning. Now see, when you will come back to the school, when all the things get normal in the school, now the government of India or the CBSE has introduced a program called Fit India. Now in that Fit India, each and every child has to give certain tests, and these all the test datas will be uploaded on the mobile direct to the CBSE. तो हर बच्चे का डाटा मोबाइल पे ही अपलोड करना है। आपने 50 मीटर रेस लगाई, 50 मीटर रेस की जो टाइमिंग आई वो आपको तुरंत उस मोबाइल पे अपलोड कर देना उस बच्चे का। हमारा स्कूल ऑलरेडी एफिलिएटेड हो चुका है, हमने सारे बच्चों को एफिलिएट कर दिया है। फर्क कितना है बस कि बच्चे आ जाए तो हमको वो टेस्ट लेके डाटा डालना है, और हर साल बच्चे की क्या प्रोग्रेस हो रही है उस साइड से रिकवर होता रहेगा। अगर किसी बच्चे की मान लीजिए इंडोरेंस 20 है और स्पीड बहुत अच्छी है, तो उस बच्चे को यह बताया जाएगा कि इंडोरेंस को बेहतर करने के लिए क्या करना है, ऑटोमेटिकली रिमार्क उसको उसमें मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, जिसका कि कल 1 ईयर पूरा हुआ है। मोदी बोला था ना कल टीवी पे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो वो सेलिब्रेशन ऑफ 1 ईयर था। Our school is also prepared with all. I have also joined that course. I have passed all the exams. I have become the certified now. We have affiliated our school with that, right? और बच्चों के नाम हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। बस अब फर्क कितना है, बच्चे जब आ जाएंगे तो क्लास वाइज हमको बच्चों के एग्जाम्स लेने, वही जो पहले किया हुआ है आपको 9th वगैरह में, सारा टेस्ट पूरे के पूरे 6 बैटरीज का टेस्ट लेके वी हैव टू अपलोड दैट, और अपलोड साल में 2 बार करना। तो आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है, अगर आप बेहतर एथलीट हैं और आपके बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक वहां से कॉल आ जाएगा कि इन बच्चों को ये खेलो इंडिया गेम्स होने वाले हैं और इन खेलो इंडिया गेम्स में ये बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए, बशर्ते आप नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हो। अभी तो हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा कोई बच्चा यहाँ पे नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा है क्या, लेकिन क्योंकि वहां पर पूरे इंडिया के डाटा होंगे, एमपी स्टेट का भी डाटा होगा, गुना जिले का भी डाटा होगा, तो वहां से बच्चे को पता लगेगा कि वो किस लेवल पे खड़ा होगा। उसकी स्पीड अच्छी है, वहां पे हाईलाइट होगा एक्सीलेंट, उसकी इंडोरेंस अच्छी है, वहां पे हाईलाइट होगा वेरी गुड, उसकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है तो बोलेगा नीड इम्प्रूवमेंट। नाउ नीड इम्प्रूवमेंट में सजेशन होगा हाउ यू कैन इम्प्रूव, बोले डू दिस एक्सरसाइज रेगुलरली। फिर डाइट में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी वेट में प्रॉब्लम है, तो बताएंगे कैसी डाइट लेनी चाहिए आपको, प्रोटीन वाली डाइट लेने की, फैट वाली डाइट लेने की, फैट वाली डाइट, दिस ऑल विल बी गिवन इन दैट। और हर साल जैसे आपको मार्क्स का ग्रेड मिलता है, ऐसे ही आपको आपकी हेल्थ का भी रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा कि आप फिट है या नहीं है। ठीक है, बोलो और कोई बात पूछना है किसी को, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। शिवांश, एनी डाउट? भौमिक, एनी डाउट? हर्षित बेटा, एनी डाउट? दिशा? नो सर। मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया? सर अच्छे से समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। मुस्कान? नो सर। रुमिशा बेटा?
No, sir. सुहानी, No, sir. चलो तो अब मंडे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। ऑलराइट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, and in this we are going to discuss about next chapter is anatomy, physiology and kinesiology. Concept of anatomy, physiology and kinesiology. राइट, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मिनट, मेरे को थोड़ा लॉग इन होना पड़ रहा है अंदर। ऑल राइट, this is a new chapter called fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology. Now what is anatomy? Anatomy refers to the body, the study about the structure of the body. हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी the body functioning, the different organs, how the different organs functions in the body, right? The meaning of physiology. Physiology word derives from the Greek word, right? Motion. Study of motion, how our body moves, what are the principles applies over our body when we perform different movements, right? So this is the chapter and which is very interesting. You all will enjoy, right? And I will also try to give few presentation to make you people, and then you will present, so that one-way communication will not be. Once you will present, I am always having the opportunity to intervene, and the other person can also participate in that. Right? इसमें हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी के बारे में तो जानेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी, देन क्लासिक फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, हाउ skeletal system functions, what are the effects comes on the skeletal system when we perform exercises, right? Then classic of the bones, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 9th 10th बायोलॉजी में, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। यस और नो? 3 types of the joints. Yes, sir. Properties and property and function of the muscles, how the muscles functions, right? उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कैसे, उनकी कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ द मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल्स, माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। डिफरेंट अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। ऑलराइट, तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं, यहां पे स्टॉप कर रहा हूं क्लास को, ठीक है? और शांति पाठ करते हैं और उसके बाद में क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है? मंडे के लिए तैयार, क्लोज योर आईज, जॉइन हैंड्स, स्टार्ट शांति पाठ। शांति, शांति।
गॉड ब्लेस यू मे लीव नाउ। सर हम थैंक यू सर। मंडे मिलते हैं साई राम। हाँ कल भी तो मिलते हैं संडे सैटरडे।